Very good afternoon. Welcome to the Iqbal Stadium, Faisalabad for the Cool and Cool presents Higher Pakistan Cup 2016. This is the match between Khyber Pakhtunkhwa and Sindh. इस वक्त इस मैच के लिए जब से थोड़ी देर के बाद खेला जाएगा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों के दरमियान टॉस के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मैच रेफरी मोहम्मद अनीस, सिंध के कप्तान, पाकिस्तान के रिसेंटली अपॉइंटेड टी20 कैप्टन सरफराज अहमद और मास्टर बैट्समैन ब्लास्टर बैट्समैन अहमद शहजाद खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान। कॉइन को फ्लिप करेंगे। सरफराज सिंध के कप्तान। Heads is the call. Head is the call. Let's see. It's a headsy. Headsy. हेड्स की कॉल थी अहमद शहजाद की जानिब से और अहमद ने यहाँ पर टॉस जीता है और अहमद आपस की गुफ्तगू कर चुके हो तो हमसे भी बात कर लें। क्या डिसाइड किया? I will bat first. And here are the two teams. Inverek Sindh, Khurram Manzoor, Sami Aslam Khalid Latif, Sohaib Maqsood Fawad Alam Sarfaraz Ahmed, Bilal Asif, Roman Rais, the only change, coming in place of Anwar Ali, Suhail Khan, Muhammad Amir and Hassan Khan. And the Boom Boom Bubblegum KPK team, Ahmad Shahzad, the captain, he's come in place of Yunus Khan, who will not be taking further part in this tournament, according to the PCB release. Fakhar Zaman, Adil Amin, new player again, Zohaib Khan, Bismillah Khan, Yasir Shah, Muhammad Asghar, Ziaul Haq, Fahim Ashraf and Samin Gul. So we have two changes in Israrullah and Adil Amin. And the toss, as I said, won by Ahmad Shahzad, and I suppose without any hesitation he decided to bat. The two umpires, Asif Yaqub and Shozab Raza. The field umpires going out. Hatted, booted. The two opening batsmen for the Khyber Pakhtunkhwa team. Ahmad Shahzad, 25 years old, 110 matches, 3,860 runs, 130 not out highest, 77.28 average, strike rate rather, and an average of 36. That's Ahmad Shahzad, who's also leading the side. The last time he led, he won the match. And this is Fakhar Zaman with him, his usual opening partner. 26 years old, 23 matches, 1069 runs, a strike rate of 92, a best of 165 and an average of almost 51, which is very good indeed. So everything's set. It is the first 10 overs power play, and it's going to be Suhail Khan to start the proceedings in catching position, which was about 15 yards from the bat. Here we go. Suhail Khan to Ahmad Shahzad. Good delivery. Good delivery. Moved a bit and also carried a bit. It's really oppressive out there in the middle, and fielding and bowling is no easy task. It's easier. This one is turned away, and the first boundary, the ball rolls over to deep mid-wicket for 4 runs. That one looking for trouble, width given outside the leg stump, and Fakhar Zaman says thank you very much, go and fetch it. Nice easy on drive side of mid-wicket down to the boundary. 4 runs, 2 overs bowled, 5 for no loss. Sohail Khan continuing, and this time Ahmad Shahzad will get a boundary. Yes, he does. In fact, the ball slowing down as it approached the fence, and also for some reason the fielder also slowed down a bit. Good shot again. Both the delivery, this one and the previous one by Amir, was slightly outside middle and leg stump, and paid the price by conceding 4 runs. It was a well-timed stroke, although it slowed down a bit. But this was the previous delivery in the last ball of the previous over. Good shot again. This time again, staying down the leg side, and Ahmed Shahzad did not make any mistake. He played it over mid-wicket area for a boundary, and Sarfraz immediately came to Suhail Khan for some advice,
but 4 runs has been conceded. It was a good shot, and Ahmed Shahzad is playing well. And we have also noticed that, you know, while you are batting first, the ball is coming nicely onto the wicket because a well-rolled pitch. It's a very good pitch to bat on. This one is backward square leg boundary for 4 more runs for the KPK, 4 more for Fakhar Zaman. He goes to 15. Easy pickings there for Fakhar Zaman. The ball merrily bouncing away to the boundary for 4. लेजेंड है हमारे कमेंट्री में क्लास 44 ईयर्स से। इस मरतबा कवर्स में खेलते हुए 4 रन हासिल किए। बड़ा अच्छा स्ट्रोक था इस मौके पर। बड़ी परफेक्ट बैटिंग विकेट नजर आ रही है। राशिद गेंद प्रॉपर बैट पर आ रहा है और जिस अंदाज से दोनों बैट्समैन ने आगाज किया ये रिप्ले। फ़खर का मतलब कि अच्छा ड्राइव था ये और गैप में मारी, अच्छी फॉर्म में। जो प्लेयर गैप में खेल रहा होता है इसका मतलब है उसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। थोड़े बॉडी से दूर था, बॉल स्विंग नहीं हो रही जिसकी वजह से हेल्प मिली, विकेट से हेल्प लेके उसको टाइम किया है। और यही बॉल अगर स्विंग होगी और मे बी स्लिप भी नहीं है अभी तो, लेकिन यह है कि इस पर वर्क करना पड़ेगा। नो डाउट अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इस मरतबा बहुत उम्दगी के साथ खेले, कोशिश के बावजूद फील्डर गेंद को नहीं रोक सके और गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ये स्ट्रोक इस बात की अक्कासी करता है कि गेंद कितनी खूबसूरती के साथ बल्ले पर आ रही है। बहुत अच्छा टाइम किया अहमद ने। अगर हम एक बॉल को निकाल लेते हैं, पिछली बॉल को अगर निकाल लें, अगर वो रन आउट हो जाते तो कितने पश्चिमा होते अपनी बैटिंग के ऊपर। बहुत अच्छा टाइम किया अहमद शहजाद ने और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। पूरी बैटिंग में अपनी यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी पे बिलीव करना पड़ेगा अहमद को कि कोई ऐसी ऊंची शॉट नहीं मारे और कोई सुसाइड रन आउट नहीं हो। तो आराम से इस विकेट पे अगर खड़े रहें तो सेंचुरी कर सकते हैं। परफेक्ट। इस मरतबा शॉर्ट बॉल दी और आसानी के साथ ये रन मुकम्मल हुआ। 11 गए 50 बगैर किसी नुकसान के। मंजर गो के गर्मी है लेकिन साथ साथ हल्की हल्की हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, तो मौसम इस वक्त काफी गर्म है। लेकिन क्रिकेटर्स के लिए तो राशिद एक आइडियल सिचुएशन है। नहीं, गर्मी तो है आइडियल। या तो हम सर्दियों में बहुत खेलते हैं या गर्मियों में खेलते हैं। और स्टेडियम फैसलाबाद में इस वक्त असर का वक्त भी हुआ चाहता है। ठीक है शाबाश। टाइम दे रहा है। इस मरतबा कट करने में कामयाब हुए। 2 फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाला और एफर्टलेस 4 रन हासिल किए फखर जमान ने। अगर इस बॉल पे 4 रन नहीं मिलते तो शायद मुझे भी अफसोस होता। इतनी फीड नहीं करनी चाहिए आपको। अगर मिडिल स्टंप पे थोड़ी फ्लाइट से इतनी तेज बॉल की है ऑफ स्टंप के बाहर, एक सेट बैट्समैन, तो अगर इस पे 4 नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से ज्यादती करता वो। ओपन जूस इनविटेशन इसको खुश दिली के साथ कबूल किया फखर जमान ने। I think they'll have to change gear at some time and press on the accelerator. This one is cut away down towards cover and the ball goes over the boundary for 4. It's a very hot afternoon, I know that, and the fielders must be finding it a bit difficult to sprint after the ball. But the spinners who are in charge, they are keeping a lower trajectory. They are pushing the ball through a bit quickly. I think if they give it a bit of loop and flight. Hit powerfully, and it goes to the boundary at wide mid-on. Lovely stroke to the pitch of a flighted delivery. He had been bowling tight. He had not been giving much air, but on this occasion he bowled a flighted delivery, and he was down on his knee and really swung hard to the boundary at wide mid-on. Brave young ladies. It's a very hot and humid afternoon. Forced off the back foot, should carry to the boundary, putting the ball in the gap on the side,
and no chance whatsoever for the deep gully fielder. And with that boundary, the score moves on to 96 for no wicket after 19 overs, and Fakhar moves on to 46. That's the match summary. Sohail continues, Sohail Khan, and played nicely away on the onside, restricted to a single. The run rate 5.06, and it can only improve with so many wickets in hand. And both the batsmen have done a very, very good job indeed. 97 for no wicket. 33 dot balls. Sohail Khan and Ahmed Shahzad drives. What a lovely looking stroke. Full of poise and decorum. And he just stood and delivered, as it were, banished the ball from his presence. And fetch it. There was a touch of contempt in that shot, and of also a bit of regality. Yes, a very elegant stroke. Didn't hit it too hard. He placed it well and timed it beautifully. And once it went past the cover, there was no one to stop it. 100 goes up on the board for the Khyber Pakhtunkhwa. There are some more runs here that the space has been taken off, but it's still there was enough power behind that to carry it to the extra cover. So Ahmed Shahzad now in full flight, full flow. That over has cost Sohail Khan 10 runs already, and there is still a couple of deliveries to come. Oops, I think he got a hand to it. He should have stopped it. So 4 more runs, 10 of the first 4 balls. And that should be his half century. Fakhar Zaman, he's played very well. Just pushing it onside, and wonderful opening partnership. And he's obviously very, very happy, having done a good job for the KPK. पुल किया इसे जोरदार तरीके से, और गेंद एक टिपकाती हुई गई मिड विकेट के पार। दिल का शौका फखर जमान का, उनका इंफरादी तौर पर 7वां, और आज बहुत ज्यादा अपने ही पाले में गेंदें गिराई हैं ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ ने। बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस शॉट के ऊपर फखर जमान। एनीथिंग शॉट, पूरा फ़ायदा उसका वो उठाते हैं। स्क्वायर लेग के फील्डर बाउंड्री पे मौजूद है, मे बी 10 कदम बाउंड्री से आगे, क्योंकि बड़ी बाउंड्री है उस साइड पे। क्लिक किया, इस मरता फिर रन आसानी के साथ बन जाएंगे। काफ़ी फासला तय करना पड़ा हसन खान को, पिछली 3 गेंदों पर वो काफ़ी मसरूफ है, और तीसरा रन भी दौड़ लिया अहमद शहजाद ने। विकेटों के दरमियान बड़ी अच्छी दौड़, 150 रन का हिस्सा भी अबूर किया इस ओपनिंग पेयर ने। फ्लिक करने में कामयाब हुए, बिल्कुल कुवत सर्फ नहीं करना पड़ी अहमद शहजाद को। फ्लिक ऑफ द रिस्ट के जरिए उन्होंने एक और बाउंड्री पा ली। शफल अक्रॉस किया, गैप क्रिएट किया ऑन साइड। फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद है, और उधर ही बॉल को प्लेस किया। यहाँ पे बॉलर्स को अपनी लाइन एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनिशियल मोमेंट है अहमद शहजाद की, वो ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं। तो एनीथिंग अराउंड जो ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप है। अच्छा कट शॉट पर फील्डर है, स्वीपर ऑफ साइड, लेकिन गेंद रोकने में नाकाम रहे। 4 रन, और ये बड़ी ताकत है अहमद शहजाद की, ऑफ द बैक फुट ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलना।
अगेन स्क्वायर ऑफ द विकेट विद प्रोवाइड की लाइन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं अहमद शहजाद को, का स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ऑलमोस्ट सारे ही बॉलर्स ने आज तारिक स्ट्रगल की है, कोई भी इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र नहीं आया सिंध की जानिब से। कंडीशंस भी उनके लिए मुश्किल थी, गर्मी भी काफ़ी है। पुल शॉट्स, सनसनीखेज शॉट अहमद शहजाद का। पहले से अंदाजा था कि आमिर रिएक्ट करेंगे, इसलिए शॉर्ट पिच डिलीवरी ये सजावार ठहरी एक और बाउंड्री की। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि गिफ्ट था बॉलर की जानिब से अहमद शहजाद को, उन्होंने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया। कोई पेस इस बॉल के पीछे नहीं थी, काफ़ी टाइम मिला अहमद शहजाद को। ऑलमोस्ट ऑन द फ्रंट फुट उन्होंने इस बॉल को पुल किया और वेल इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। और इससे पुल किया और इस तरह अहमद शहजाद ने अपनी 9वीं वनडे सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लिस्ट ए क्रिकेट में बड़ी शानदार और आला कारकर्दगी का मुजाहरा अहमद शहजाद ने किया। इस 24 साला बैट्समैन ने अपनी इफादियत साबित की है इस ओपनिंग पोजीशन पर, क्योंकि आज इनके दोनों स्पिनर्स कर रहे हैं और ये पहली कामयाबी मिली बिलाल आसिफ को। टर्न मिला और थोड़ा बाउंस भी मिला और जबरदस्त कैच लिया सरफराज अहमद ने। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट करने की कोशिश की, ज्यादा जगह मौजूद नहीं थी और एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो सिंध के काम आ गया। थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन फखर की जानिब से, अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, एक्स्ट्रा बाउंस मिला, अच्छा कैच। लेकिन इतने खुश नहीं लग रहे हैं अंपायर के डिसीजन से फखर जमान, लेकिन उनको जाना होगा। कीमती 68 रन बनाए उन्होंने। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की गई है और क्योंकि यूनुस खान अब नहीं है मुस्तकिल तौर पर, तो उनकी जगह ज़ुहैब खान वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं और काफी जिम्मेदारी से खेले थे। ये गंदा यार। और जैसा कि हमने सारे मैचों के अंदर देखा है तारिक, इस स्टेज के ऊपर बॉलर्स को सडनली हेल्प मिलना शुरू होती है। बहुत शुक्रिया तारिक से, मोहम्मद वसीम। और इसी के साथ जबकि दिली हुई कमेंट्री में तो पहली बॉल पर यहाँ पर एक और बाउंड्री हासिल की है ज़ुहैब खान ने ऑन साइड पर खेलकर, तो मजीद यहाँ पर स्कोर को आगे पहुंचाया और अपनी शानदार फॉर्म को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में दिखाते रहे। बहुत ही अच्छा शॉट फवाद आलम का, ये पहला बॉल और बहुत वक्त मिला और बड़ी आसानी से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद गई है लोगों के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। तो बड़ा शानदार यहां पर छक्का अहमद शहजाद का। जी हाँ, फवाद आलम की मुस्कुराहट यकीनी तौर पे जा जिन्होंने जेस्चर दिया था, क्योंकि बड़ा अच्छा ओवर अब तक ये केपीके के लिए रहा है। कप्तान का रोल बहुत ही आसान तरीके से निभाया है और बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेलकर अपनी सेंचुरी की और अब ज़ुहैब उनका साथ देते हुए। और इस बार बड़ा खूबसूरत ड्राइव यहां पर और यकीनी तौर पे यहां पर 4 रन मजीद हासिल होंगे। तो यहां पर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में केपी की टीम रन्स को बटोरते हुए। एक और बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बैक ऑफ लेंथ बॉल था, टाइम मिला और उन्होंने पंच किया इसको। इतना अच्छी पिच इस वक्त खेल रही है और इतना अच्छा बॉल देख रहे हैं अहमद शहजाद कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था इस बॉल को वाइड ऑफ मिड ऑन खेल के 4 रन हासिल किए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में केपीके की टीम बड़ी अच्छे इस वक्त विल का जो मुजाहरा किया है उससे कुछ महसूस ये हो रहा है कि ही इज़ एंजॉइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए कैप्टन ऑफ केपीके, और वो एक चैलेंज समझकर उन्होंने इस रोल को किया है और अब वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और यही एक हिडन टैलेंट होती है कुछ प्लेयर्स की। और बहुत अच्छा स्टेयर किया, 4 रन। जी हाँ, इस बॉल से पहले थर्ड मैन को ऊपर बुला लिया था, लेकिन लगता है कि उसका नुकसान रहा है यहाँ पर।
सिंध की टीम को, क्योंकि जैसे ही थर्ड मैन ऊपर लिया उसी के शहजाद ने देखा और एक और यहाँ पर बाउंड्री हासिल की है। बहुत अच्छी तरह बॉल को अपने बैट पर देख रहे हैं और उन्होंने स्टे किया बिटवीन थर्ड मैन और पॉइंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था और जैसा दानिश ने बताया कि थर्ड मैन को ऊपर बुला लिया था और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बड़ी आसानी से, और इस बार गेंद को ऑन साइड से पहुंचा दिया है और अहमद शहजाद को ये गेंद यहाँ पर लगी भी है, जख्मी है, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं अपनी इस बॉल लगने के बाद और फौरन कॉल किया है यहाँ से उन्होंने ड्रेसिंग रूम से डॉक्टर को अपने अब तक 57 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, तो सोचने की जरूरत है। खट किया वाइड ऑफ पॉइंट और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रहा, 4 रन। एक और ही बहुत खूबसूरत शॉट अहमद शहजाद का, विथ मिली, रूम मिला और इसको जाने नहीं दिया। बहुत ही शानदार शॉट। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार तीसरी यहाँ पर बाउंड्री हासिल करने में कामयाब रहे हैं अब तक इस ओवर में अहमद शहजाद, और जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जिस तरह से रन्स बना रहे हैं, उससे लगता है कि अच्छे इरादे नहीं है इनके सिंध के खिलाफ। आपने जो बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आई थिंक इन दोनों मैचेस में जब से वो कैप्टन बने हैं इम्प्रोवाइजेशन की थी। इस बार खत्मों का इस्तेमाल किया है और फील्डर गेंद के नीचे, कैच आउट होने का खतरा, और इसके साथ ही अहमद शहजाद की कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। जो तब्दीली की थी बॉलिंग में बिलाल आसिफ की, वो सूद, और अहमद शहजाद आउट होने के बाद पवेलियन वापस। अहमद शहजाद जो तकलीफ महसूस कर रहे थे, उसकी वजह से वो एक शॉट खेलना चाहते थे कि मैं जल्दी से रन्स बनाऊं, टॉप एज किया और बड़ा आसानी से ये कैच हासिल किया रोमान रईस ने, और एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेल के अहमद शहजाद पवेलियन में वापस 143 रन उन्होंने किए, और वो इस ओवर के बाद उनको एक और फील्डर की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। पुल किया स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन, पीछे बॉल किया बिलाल आसिफ ने और बहुत टाइम मिला और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको टाइम किया स्क्वायर लेग के ऊपर से और बड़ी आसानी से 4 रन किए। बहुत ही बुरा बॉल था, बहुत पीछे पिच किया हुआ था, और ऐसे बॉल जब आपको इनिंग्स के शुरू में मिल जाए तो यू डोंट, और सिर्फ बॉल को सीधा फील्डर पर खेल रहे हैं। इस बार 1 रन लेने का फैसला किया और केपीके के अब 250 रन मुकम्मल हुए हैं, खेल बाकी है, और जिस तरह अजहर खान आपने कहा कि अगर 300 रन करते हैं तो फिर ये कम होंगे इनकी परफॉर्मेंस के एतबार से। और इस बार आउट कर दिया मोहम्मद आमिर, तो जिस विकेट की तलाश में मोहम्मद आमिर वो हासिल करने में कामयाब रहे और निहायत कीमती विकेट यहां पर सिंध के लिए, क्योंकि ज़ोएब खान की जो फॉर्म है उस फॉर्म के बाद विकेट हासिल करना यकीनी तौर पे खुशाइंद है यहां पर सिंध के लिए। ये एक शॉर्ट पिच बॉल था और सरप्राइज ज़ोएब बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे और खड़े खड़े उन्होंने इसको हुक करने की कोशिश की, एच किया और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच सरफराज के पास, और इस तरह 27 बनाकर ज़ोएब आउट हुए और एक अच्छी और एक कीमती और एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो है। तो इसरारुल्लाह जिनको आज शामिल किया गया है वो अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हाउसफुल होता है, खुशाइन चीज़ है कि कोयटा से भी प्लेयर आ रहे हैं। अपील आमिर की जानिब से और अंपायर रियाजुद्दीन, 12 टेस्ट मैचेस 12 वनडे इंटरनेशनल का तजुर्बा रखने वाले, आसान फैसला, फिजा में उंगली बुलंद। लगता है रिवर्स स्विंग हो रही है, थोड़ा मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के बीच में लगी है, लगा ऐसा बीच में आ गए थे बहुत ज़्यादा इसरार, और क्लोज डिसीजन है, क्लोज डिसीजन। इसरारुल्लाह का डिपार्चर, 2 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। आदिल अमीन नए आने वाले बैट्समैन, 140 रन का कैरियर बेस्ट रहा, 29 मैचेस खेल चुके हैं, 1136 रन स्कोर किए। और
रिवर्स स्विंग अगर हो रही है तो यहाँ पे इनको विकेट लेनी चाहिए। इस मरतबा 4 रन हासिल करने में कामयाब जरूर हुए। आसिफ याकूब की जानिब से 4 रन का सिग्नल, रन्स में इजाफा होना चाहिए। फ्रेंच कट मारा, रिवर्स स्विंग दी, फुल ऑफलाइन हुए, ग्लास किया 4 रन के लिए। बैट डिलीवरी, सोहेल खान की पहली बॉल वार्म अप होके आना चाहिए था। किसी भी बॉलर स्पेल के बाद आए दूसरे में। पीटीवी का हिस्सा है, बड़ी खिदमात है इनकी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। इसी दौरान उठता हुआ स्ट्रोक फील्डर के सर के ऊपर से लॉफ्ट किया 4 रन के लिए। अच्छा पिक किया बिस्मिल्लाह ने, और मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर, और पहले से इन्होंने बनाया हुआ था कि अगर बॉल इस रीजन में आएगी जहाँ पे रख पड़ेगा तो उन्होंने लिफ्ट कर दिया। मिड ऑफ के ऊपर से सिर्फ फील्डर के ऊपर से बॉल को जाना ही था, चौका हो गया। अब सोहेल की 2 बाउंड्री लग चुकी हैं, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने बॉल्स को बचाना। और बिस्मिल्लाह को भी ट्राई करनी चाहिए कि जितनी मैक्सिमम बाउंड्रीज लगा सकते हैं इस ओवर में लगाएं। 11 रन अब तक दे चुके हैं, और इस मरतबा सिर्फ एक ही रन पे ही इक्तफा करना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए कॉल की, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जो अब तक इस ओवर में बिल्कुल को मिली। नौजवान हसन को रोमान रईस थे इनफैक्ट, ये रोमान रईस हैं। 2 दफ़ा उन्होंने डबल दिए हैं, तो फील्डर को चेंज किया सरफराज ने, पर चांस ले सकते हैं थर्ड मैन की तरफ। और इस मरतबा दिखाया कि शॉट फाइन लेग के सर के ऊपर देंगे, और बहुत ताखिर के बाद डिसीजन दिया, बहुत इंतजार किया, बड़ी देर की मेहरबान आते आते कॉन्फिडेंट शॉट सरफराज और रोमान रईस की, जो बिलाखिर उंगली को फिजा में बुलंद करने का बाइस बनी। अच्छा प्रेशर ओवर था ये रोमान की तरफ से, और हमें देखना होगा रिप्ले में। काफ़ी देर लगाई है रियाजुद्दीन साहब ने, और बिस्मिल्लाह का रिएक्शन वैसे कोई भी नहीं है ऐसा। स्ट्रॉन्ग अपील थी रोमान और सरफराज दोनों की तरफ से। भाई ने घड़ी देखी, टाइम देखा और कहा कि जाने का वक्त हो गया है, तो 25 रन बनाकर आउट हुए बिस्मिल्लाह। फहीम अशरफ लोकल बॉय हैं, नेशनल बैंक के लिए खेलते हैं, 21 मैचेस में 208 रन स्कोर किए। स्लो डिलीवरी, इसको फुल टॉस बनाते हुए खेले के लिए। आउटस्टैंडिंग शॉट, आदिल की बेहतरीन हिटिंग, जो कि केपी के लिए बहुत ही मुफीद है लास्ट ओवर्स में। पिछले ओवर में भी 2 या 3 बाउंड्रीज लगी थी सोहेल खान को, और पहली ही बॉल पे 6 रन अगर मिल गए तो सोहेल खान फिर अंडर प्रेशर। एक और स्लो डिलीवरी, और इस मर्तबा खेलने में कामयाब हुए, फील्डर के सर के ऊपर से बहुत ही उम्दा यहां पे मैनेज किया इस स्लो डिलीवरी को आदिल अमीन ने। बैक टू बैक बाउंड्रीज। सोहेल खान को प्लेयर की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि वो कहाँ पे खेल रहा है। उसने जितने भी मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट की तरफ खेले हैं, तो उस पर स्लो डिलीवरी बनती नहीं है। या तो एक पॉइंट ले लें या थोड़ा वाइड पॉइंट ले के बॉलिंग करें और यॉर्कर बॉलिंग करें। अगर मिड विकेट मारनी भी होगी तो चांस है आउट होने का उसमें भी। तो अंडर प्रेशर सोहेल खान, सिंध की टीम भी, सरफराज भी कोशिश ये करेंगे कि कम से कम रन बने, लेकिन इस दौरान 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। एक अच्छा स्ट्रोक था जिसके नतीजे में 4 रन हासिल किए। तब तक बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है इस ओवर के दौरान फहीम और आदिल अमीन ने। अच्छी शॉट खेली है फहीम ने, क्योंकि इतनी काफ़ी मुश्किल बॉल थी। एक तरह से यॉर्कर बना के उन्होंने, बैट में साउंड अच्छा था और बाइसेप किया दोनों फील्डर। हालांकि मिड ऑन पीछे था, वो कवर नहीं कर पाए उसको। और एक और बाउंड्री हासिल कर जाएंगे फहीम अशरफ। एक महंगा ओवर सोहेल खान की जानिब से। मेरे ख्याल
बॉलिंग का मैार इतना अच्छा नहीं रहा। लास्ट 2 ओवर में सोहेल खान की तरफ से दोनों तरफ बॉल की है, और नए बैट्समैन को अगर रिवर्स स्विंग हो रही तो इतने आराम से चौके नहीं मिलने चाहिए था, लेकिन क्रेडिट जाता है बैट्समैन को, फ़हीम को और आदिल को, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा जारी रखा हुआ है। और उसके साथ ही ये छठी सेंचुरी है जो हासिल की गई। 250 से 300 तक का हिस्सा जो है वो हासिल किया गया सिर्फ 36 गेंदों पर। इस पर दबाव उठा के खेले फील्डर खुर्रम, कैच करने में कामयाब, और इस तरह आदिल अमीन की मुख्तसर लेकिन जाना इनिंग का इख्तिताम। अच्छी बॉल की रोमान ने, और जिस तरह से पिछले ओवर में बात की थी कि ये ज़्यादा रूम दे के पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ पे खेलने की, पहली बॉल मिड विकेट पे ट्राई की, उनसे हिट नहीं हुई, और यही कुछ कमी होती है प्लेयर्स के अंदर कि दोनों पिच के दोनों तरफ हिट लगाने की सलाहियतें कम होती हैं प्लेयर्स की वजह से, जिसकी वजह से अपनी मिड विकेट के एरिया में ज़्यादातर थ्रो कर दी जाती है। रोमान रईस को, जिसने लास्ट ओवर्स में मतलब कि बेहतरीन बॉलिंग की है, और दूसरे एंड से एक्सपेंसिव रहे सोहेल खान। बल्ले के बिल्कुल बॉटम पे बॉल लगी, लेकिन अच्छा कैच था ये अंडर द लाइट्स खुर्रम मंजूर की जानिब से। नए आने वाले बैट्समैन यासिर शाह, बहत्तर मैचेस में 571 रन, 66 नॉट आउट हाईएस्ट, 80.08 स्ट्राइक रेट और 21.15 एवरेज रहा। और जिस तरह से सोच रहे थे कि 350 तक रन बनेंगे, और इस पर दबा बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हैरान है, परेशान है कि रन्स रोकना चाहते हैं, लेकिन लकी रन्स हासिल कर यहाँ से भी बने, और कभी अच्छी शॉट लगती है, फील्डिंग अच्छी हो जाती है, तो कभी इस तरह के चौके भी मिलते हैं आपको, जो टीम के लिए बहुत इनसाइड एज हुआ था शायद ये। इसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। अंपायर का सिग्नल देखना होगा, लेकिन 4 रन बहरहाल हासिल किए, और गेंद आसिफ याकूब के मुताबिक बल्ले से लेने के बाद गई तो 4 रन स्कोर में इजाफे का बाइस फ़हीम अशरफ के। आज दिन सही नहीं लग रहा सोहेल खान का, जहाँ पे बल्ले में बॉल लग रही है बाउंड्री के बाहर ही जा रही है। हालांकि बॉल उन्होंने कोशिश की थी यॉर्क करने के लिए, फुल टॉस हुई और किनारा लिया, और बिटवीन द लेग्स तो कभी कभार ऐसा दिन होता है बॉलर के लिए भी कि जहाँ पे बॉल कर रहे होते हैं वहाँ विकेट मिल रही होती है, और ऐसा दिन भी आता है कि जहाँ पे भी बॉल करें आप, जैसे भी करें, तो 4 रन मिल रहे होते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ द क्रिकेट है, किसी भी प्लेयर के साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, तो किसी इतना अपने आप को गिराने की ज़रूरत नहीं है। फैसलाबाद में मगरिब की अजान का वक्त हुआ जाता है, अपने मकाम से जब तक दिया जाएगा। और साजिद आफरीदी मैच रेफरी मोहम्मद अनीस के हमरा, और खुद भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं इस मुश्किल डिसीजन को देने के बाद। बहुत सा डिसीजन है। सोहेल खान ने अपना ओवर ख़त्म किया, 90 रन दिए उन्होंने, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बैटिंग, 319 रन बनाया केपीके ने 50 ओवर में, यासिर ने 5 रन, फ़हीम ने 20 रन बनाया, आखिर में नॉट आउट रहे, और अच्छा टास्क टोटल दिया है इन्होंने। तो ये बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, केपीके 143 रन के साथ अहमद शहजाद नुमाया रहे, 68 रन फ़खर जमान ने स्कोर किए, 27 ज़ुहैब खान की जानिब से, 25 बनाए बिस्मिल्लाह ने, 2 रन बनाए इसरारुल्लाह ने, 20 रन आदिल अमीन के, और 20 रन के साथ फ़हीम अशरफ नॉट आउट रहे, जबकि यासिर शाह 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
एक्स्ट्रास की तादाद रही 9, 319 6 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग कार्ड 2-2 विकेटों के साथ सर फहरिस्त रहे मोहम्मद आमिर, रोमान रईस और बिलाल आसिफ। तो इस तरह 319 रन स्कोर किए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर। और ये पार्टनरशिप्स, पहली विकेट 176 रन की पार्टनरशिप बनाने में कामयाब रही, उसके बाद 62 रन की पार्टनरशिप और ज़ोहेब खान के दरमियान, और उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप्स जिसके नतीजे में 319 रन स्कोर किए गए और यूं 320 रन का हदफ मिला सिंध की टीम को इस मैच में कामयाबी के लिए 6.4 रन फी ओवर की औसत के साथ। तो इस वक्त हम लेंगे कि ब्रेक, और जैसे ही इस मैच के लाइव एक्शन का दोबारा आगाज होगा, पीटीवी स्पोर्ट्स के नाज़रीन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से खुश आमदीद कहेंगे। Asif Yaqub is now with Riazuddin. With Sami Aslam. In previous 2 games, Tariq, they have provided really good start to their team. But different story today. They are chasing today. In the previous 2 games, they were batting first. Then things were in favor of altogether. It's going to be a different challenge. Khurram Manzoor, 30 years old, and almost 5,000 list A runs. A strike rate pretty good, 0.83, and average very good indeed, 48.91. And at the start of his career, 41 matches, and average of 52.08, and a strike rate of 85. These two open the 8th. They know the task ahead to score 320 runs. Ziaul Haq to open the bowling for KPK. 57 wickets so far for the youngster in 37 matches. 2 slips in place for Ziaul Haq. 3 men on the side inside the circle. Only 3 men on the onside. Straight away, Khurram Manzoor off the mark. He's in very good form. Scored 2 centuries in previous 2 outings for Sindh. Sindh, of course, need a big him, and he not only has the appetite but also the ability to score quickly. And Khurram under some pressure, facing up to Samin. And a simple catch, he's gone. And first breakthrough, and that was a timid sort of a stroke. He wasn't to the pitch of it and hit it in the air. Khurram wasn't comfortable out there, and this was a stroke in frustration. He's not happy with the reaction of the bowler. He has few words to say to Khurram Manzoor, taking his wicket. Samin go, and Khurram Manzoor not really happy, but he has to blame himself for that stroke. It was never there. In the previous game we saw him, he was taking his time, first 5 to 6 overs. 3 for 1, Khurram Manzoor out, and didn't last very long. He was dropped, a sharp chance behind the wicket, and Khalid Latif is now coming in at the 1-drop position. 91 matches, average of 46.04, and a strike rate just below 90. Samin Gul is the bowler, and that should be 4 runs. Nice stroke, and hit it powerfully down to wide mid-on. Yeah, good pickup stroke from Sami Aslam, shuffling across the stump, taking that delivery from outside the off stump over mid-wicket. So first boundary for Sami Aslam. It was a length delivery. And there could be a run out, and the batsman doesn't move, and the non-striker had joined him, and that is a very rude shot for Sindh. Well, both standing in the same end. The ball was going behind square, so it was Sami Aslam's call, but Khalid Latif was looking at the ball. He never responded to Sami Aslam, and he was never interested. So, very unlucky for Sami Aslam. He has to depart.
15 for 2. Sami Aslam run out for 7 and well, complete misunderstanding between the two, and they are reduced to 13 for the loss of 2 left over. And Sohaib is the new batsman, Sohaib Maqsood, 72 matches, 29 years old. Pull away. That should run away for a boundary in his zone. Khalid Latif very strong in that mid-wicket area. Anything short, and he will go for you. And I think they need more of those strokes. Very well picked up, hit it on the up and went very quickly to the boundary. Watch Khalid just pick it up and heave it down to the mid-on boundary. 1, 2, 3, 4 bounces. Ziaul Haq was looking for that extra bounce which wasn't there on that occasion. Again, pull again. Didn't really middle that one. That was almost the shoulder of the bat, but luckily it landed safely for Khalid. Yes, we've got 2 fielders, one at short fine leg, the other at square leg, and dangerous thing to attempt. And this time he's gone. So the plan has worked from Ziaul Haq. And yet another time we are seeing Sohaib Maqsood getting out of a short delivery. So it's a delighted KPK side. They've done very well with the bat and now making things difficult. That was short, lifting. He was in no position to play that hook stroke and just edged it and well caught by Bismillah Khan. A well-directed bouncer from Ziaul Haq, who walks out into the middle. 31 years old, plenty of nearly 5,000 runs, strike rate of 82 and average, and 2 fielders for a possible lofted drive. And that was beautifully struck. Past the bowler on the onside, running away to the long on boundary, and that's a super shot by Khalid Latif. And I think his team would require these sort of strokes. half volley just around that off stump. Full face of the bat from Khalid Latif. Powerfully struck. और इस बार बाउंड्री हासिल होगी यहाँ पर। खालिद बड़ा ही कॉन्फिडेंट शॉट यहाँ पर खेले हैं। किसी फील्डर के पास मौका नहीं था कि इस गेंद को रोक सकता। बहुत दूर गेंद फील्डर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खालिद लतीफ के स्ट्रॉन्ग फोर आर्म और अपने राइट हैंड का बॉटम हैंड का जबरदस्त मुजाहरा। इस बार ऊंचा शॉट खेले हैं और गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर है। सेफ शॉट यहां पर खालिद लतीफ खेले और 2 रन यहां पर हासिल किए। तो 38 पर 3 सिंध का स्कोर 10 ओवर के अख्ताम पर। आपको फॉरेन फील्ड बदलना होती है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोशिश की गेंद को रोकते, लेकिन बहुत दूर थी गेंद और 6 रन के लिए बाहर गई है। तो यहां पर बड़े कीमती सिंध को खालिद लतीफ की बदौलत। जी एक बहुत ही जोरदार शॉट, फ्लैट शॉट खेली खालिद लतीफ ने। प्रोबेबली वो एलिवेशन जो चाहते थे वो हासिल ना कर सके और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने भागकर कैच करने की कोशिश की मगर उनकी पांव से दूर था और एक बहुत ही फ्लैट स्ट्रोक खेलकर। Short ball played it towards mid wicket. Beautiful shot this time. He got that gap deep in mid wicket area. Beautiful shot. It was pitch short. Gave enough time to Fawad Alam, who has opened up with this beautiful shot for 4 runs. He dragged it from just a bit outside the off stump and found the gap. He was eyeing that gap. This one is swept away, going down to the boundary. 4 runs. That kept a bit low, but
Khalid Latif anticipated that, moved into perfect position, and then half swept, half pulled it down to the long leg boundary for 4 runs. Bad delivery. It was on the leg stump short. There was no deep square leg fielder because most of the fielders were placed on the offside, and he paid the penalty. And what a good shot! But mind you, these two, that should be kept in mind by the Sindh batsman. Out he comes, and the ball bounces away merrily down to the long on boundary for 4. Required run rate just slipping a bit. 19 overs gone, and the beginning of the 20th over. 248 still required. Fawad Alam and Khalid Latif in possession of the wicket at the moment, or in occupation of the wicket, as I speak. swept and got come back for the second. Both the batsmen are experienced enough to know the asking rate, and they can step up once they get settled. Turned away by Khalid Latif down to deep square leg. That's a no ball, another no ball. Come on, Fahim. I think Ahmed Shahzad will go and have a word with him. Word of encouragement, word of calming him down. Look, he's saying, well, why can't you see where the line is? Yes, there is Ahmed Shahzad. He isn't very upset. He's just a bit concerned. Yes, that was a no ball. No problem on that one. And of course, talking of the twins, the most famous of them were the Betzer twins, Alec Betzer and Eric Betzer of Surrey in England. That's a lovely stroke. Beautiful shot by Fawad Alam. He made room for himself to play that shot, waited for it, and then cut it ferociously, timed it well. A very elegant looking stroke from Fawad Alam, going down to the boundary for 4. There it is. Bended knee. The ball is speeding away to the boundary for 4. This time he bowled outside the off stump and paid the penalty because there was no fielder covering. KPK would be looking to get the breakthrough. He officially to deep square leg and misfielded. Sloppy fielding at the deep square leg position. Conceded 4 runs. Asghar would not be happy to see that. The fielder, I think, deceived by the spin of the ball. Once it pitches, it also... ना पाकिस्तान क्वालिफाई करता अगले मरहले के लिए। इस मरहले खालिद ने ज़ियाउल हक फील्डर 1 रन का इजाफा। अब दोनों एंड से लेफ्ट हैंड 50 रन किए खालिद ने, दूसरा 50 है इनका इस टूर्नामेंट में, और दोनों एंड से अब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे हुए। एक बैट्समैन जो कि जिसको थोड़ा सा इजी हो, बॉल हो रही हो जिसको, जैसे फवाद आलम है, थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा अब, क्योंकि एवरेज हल्के हल्के बढ़ता हुआ, तो यहाँ से 9.11 का भी रन रेट रिक्वायर्ड है, तो फवाद को बड़ी हिट खेलनी पड़ेगी। मिड विकेट का एरिया काफ़ी है, अच्छा खेलते हैं ये। जी हाँ, और इस मरतबा कोशिश की फवाद आलम ने, 4 रन हासिल किए। तो राशिद, यकीनन आपका एक्सपीरियंस फवाद आलम तक जरूर पहुंचा होगा। 4 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। फवाद ने थोड़ा सा अपने पाँव निकाल, गिर गई उनसे, ये थोड़ा झपकी दी एक तरह से, बॉल पीछे गिरी, अच्छा यूटिलाइज किया और गैप में सिर्फ टाइम किया और 4 रन के लिए बाहर। अब कट के लिए तैयार होना चाहिए। वैसे उठा के खेले फवाद आलम, इस मरतबा लॉफ किया और क्या शानदार अंदाज से अपनी मुकम्मल की फवाद आलम ने। 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेला है फवाद ने, यूटिलाइज किया अपनी बैटिंग को, अपने स्ट्रेंथ जो इनकी स्ट्रेंथ है उस पर खेल रहे हैं ये। मिड ऑन और मिड विकेट के एरिया में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मेरा मानना ये था कि बॉलर अब कट की बॉल ज़रूर देगा, क्योंकि मिड विकेट लगी है तो उसके लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन
अपने कदमों का इस्तेमाल किया तेज़ी से। ये देखें आप, कदमों का इस्तेमाल करके मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में बॉल को फेंक दिया और रन रेट को थोड़ा बहुत बढ़ाते हुए केपीके से मतलब एबटाबाद से खेलते हैं। इस दौरान उड़ा के खेले खालिद लतीफ अपने मखसूस अंदाज में 6 रन के लिए फ्लैग बॉस छक्का और रियाजुद्दीन की जानिब से 6 रन का सिग्नल। खालिद ने भी, जैसे फवाद आलम ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, खालिद लतीफ़ ने भी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और मिड विकेट पे बॉटम हैंड को यूज़ करते हुए एक छक्का उन्होंने मारा। और ये देखना है कि कब गेंद स्टेडियम से बाहर जाएगी। और इस मरतबा ऑन पे खेले 4 रन हासिल करेंगे आलम, पांव पे गेंद की और इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा फहीम अशरफ को। इसको मैं बोलूँगा बॉलर की मिस्टेक है, क्योंकि उनको पता है कि फाइन लेग ऊपर है और फवाद आलम जो कि अपनी लेग पे बहुत ही स्ट्रांग है और इन्होंने बॉल बहुत ही मतलब फीट की एक तरह से बॉल, लकी भी में नहीं गई, लेकिन ये है कि यहाँ पे 2 चौके एक लग चुके हैं। खालिद ने अपने फुल टॉस गेंद, इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया खालिद लतीफ इन एक्शन, 6 रन। फ्लैट 6 है खालिद का, मेरे ख्याल से बॉल हाथ से स्लिप की है और मतलब ये बोनस मिला है सिंध को। 150 रन भी मुकम्मल हुए छक्के के साथ ही और ये बॉल हाथ से मेरे ख्याल से स्लिप हुई है। ये नो बॉल भी लग रही है, नो बॉल है, लेकिन ये देखना पड़ेगा, एम्पायर को कॉल करनी चाहिए थी क्योंकि वाइटल हो जाती है। एक भी एरर ना, एक खुशाइन चीज़ है उनकी, उन्होंने टीम बिल्ड की है केपीके की। एक और उत्तम स्ट्रोक लॉफ्ट किया इस मरतबा खालिद लतीफ ने और तमाशाई भरपूर अंदाज से महसूस होते हुए इस ओवर के दौरान खालिद लतीफ की बैटिंग से मेरे ख्याल से अननेसेसरी छक्का है ये खालिद का। ये चांस, एक छक्का लग चुका है तो अभी खुद ट्राई किए ना, और ये बहुत स्ट्रांग इनका एरिया है, लेकिन यहीं पे आउट हो सकते हैं। कोशिश के बावजूद फील्डर गेंद को नहीं रोक सके और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए लकी बाउंड्री हासिल की खालिद लतीफ ने। बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, हल्का सा टाइम किया है सिर्फ। यहाँ पे जहाँ पे पार्टनरशिप लगती है वहाँ मिस्टेक करते हैं, बॉलर को चेंज किया है। यहाँ पे राउंड द स्टंप बॉल करने के लिए आए, टर्न मिलेगा नहीं इनको यहाँ से और बैट्समैन सेट है, जहाँ पे बुरी बॉल गिरेगी ये बाउंड्री मारेंगे। और इस मरतबा खालिद लतीफ अपने मखसूस अंदाज में स्वीप करने में कामयाब। बैक टू बैक बाउंड्रीज खालिद लतीफ के लिए, खालिद लतीफ स्पेशल। स्ट्रॉन्ग एरिया में बॉल कर रहे हैं, बहुत तेज बॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। मिडिल लेग से भी बाहर बॉल फेंक रहे हैं और जो भी स्वीप होगी वो का होगा। अगर ये हटेंगे और मिडिल स्टंप से आएंगे या ऑफ स्टंप के बाहर आएंगे तो कट पे चांस है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा अहमद शहजाद को। अब एक और स्वीप, लेकिन इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंच जाएंगे और अच्छी आसानी के साथ फील्डिंग की यहाँ पे यासिर ने। 1 रन का इजाफा, तो में अब तक 10 रन स्कोर किए जा चुके। 5 गेंदें डिलीवर की हैं आदिल अमीन ने, क्योंकि क्लियर प्लान नजर आ रहा है सबीन गुल की जानिब से कि वो यही इसी लाइन पे अटैक करेंगे। इस दफा ओवर मिड ऑन खेले, चांस है फील्डर के पास और फवाद आलम की विकेट मिल गई खैबर को और एकदम से मैच में वापस आ गई है खैबर पख्तूनख्वा की टीम। बहुत ही अच्छा कैच लिया फखर जमान ने, आज जख्मी हो गए थे कुछ देर पहले, लेकिन जब से वापस आए हैं फील्डिंग में वो आपको हर तरफ नजर आ रहे हैं। और ये देखिए खतरे स्लो डिलीवरी थी, इसलिए शॉट बाउंड्री के बाहर नहीं जा सका और इत्मीनान के साथ इस गेंद को आने दिया, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखा। उनकी जगह लेने के लिए ग्राउंड में आ रहे हैं। बिल्कुल स्वीप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था खालिद लतीफ के लिए और इस शॉट के ऊपर उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं इस इनिंग में। अहमद शहजाद को मैं भी सोचना होगा अपनी फील्ड प्लेसमेंट को यहाँ पे कि मैं भी आ रहे थे बैट्समैन। ठीक है और ये रही इंतहाई शानदार सेंचुरी खालिद लतीफ की। उनकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फातिहाना अंदाज में उन्होंने अपना बल्ला फाजा में बुलंद किया, तमाशाइयों की दादो तहसीन का जवाब दिया।
खेलते रहे और अब तक मर्द बहरान का किरदार। और स्टंप आउट की अपील और खुद ही चल दिए खालिद लतीफ अंपायर का इशारा देखे बगैर, बल्कि ये सरफराज अहमद हैं। इस एंगल से हमें पता चलेगा कि कैसे वो अप स्ट्राइड लंबी ले गए। तो तारिक, खालिद लतीफ के लिए राशिद लतीफ का अच्छा साइन है, लेकिन सरफराज के लिए नहीं। कोर्स बिलाल आसिफ ने बैट्समैन आज जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। फ्लैट सिक्स पिक किया ऑफ स्टंप के बाहर से। इस दफा खालिद लतीफ ने वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड प्लेयर है और इस दफा पूरा फायदा उठाया। लेंथ मिली उनको ज़ुएब खान की जानिब से, शॉर्ट बाउंड्री की जानिब उन्होंने फ्लैट छक्का मारा। तो काफ़ी डिपेंड करेगी सिंध की टीम खालिद लतीफ के कि वो अपना यहाँ पे जो उनका चल रहा है पहले से उसको वो फर्दर कैरी करें। इस बार लेग ब्रेक की और पुल कर दिया खालिद लतीफ ने 4 रन्स। बड़ी जल्दी गेम की रफ्तार को रीड कर लिया था और लेंथ को भी, बहुत बड़ा गैप नहीं था मिड विकेट के दरमियान, फायदा उठाया। बैक ऑफ द हैंड बॉल को उन्होंने रिलीज किया था, लेकिन लेंथ बहुत पीछे थी। उठता हुआ शॉट और गेंद बाउंड्री को क्लियर तो नहीं कर सकी। 2-3 टिपक आती हुई ये बाउंड्री पार कर गई। Fit person. This is where the last ball when he hit over the mid off area, Bilal Asif got that boundary. He fielded 50 overs. Bilal Asif in the meantime facing up to Yasir. He's got him in the air and gone all the way to the boundary for 6 more runs for Sindh. So I think the game is on, as they say. At the moment we have a game here because that is what they needed, the wicket of Bilal Asif or Khalid Latif, so they got Bilal Asif and probably that message failed. Well, that could have been the message that come on, get out and come back. We'll send someone else. No, I'm just being facetious here. Oh yes, see, inside edge. Bails are off in this humidity. Really, the heat is gone. Bilal Asif bowled Ziaul Haq for 21. He had 1 sixer, 1 4. Local games, and he can hit the ball. Look at the strike rate, 70 point. Way, and that goes bouncing merrily over the rope for 4 runs. That's a lapse on the part of the fielder. We'll have to watch the replay there. You normally don't expect this to happen. The last dying moments of the game where you need to protect these boundaries. That is why you were stationed there. In the air. Who's going to get it? Somebody in the crowd. 6 runs. First ball 6. Now that really puts the cat among the pigeons. So probably this time to bowling around the wicket. He came down the track, Sohail Khan. As I told you earlier, he hits the ball very hard. Straight to mid-on for a single to end the over. He will keep the strike. 48 overs gone. 286 for 6, and this is 150. What an innings. Khalid Latif played a brilliant knock here. So why don't you move outside the off stump? And he came down the track, straight over the bowler's head for a 6. Beautiful shot. Beautiful shot. In fact, that's what the other Latif whom we have in our commentary box, Rashid Latif, by the way, who's not related to Khalid Latif, he suggested from here that he should stand out. What a huge 6. He came outside the off stump and saw that ball pitching up. He played it over mid-wicket and it is out of the park. No, it's not out of the park. It's out of the stadium. It's on its way to the clock tower. It's gone to Ghanta Ghar.
Such a powerful hitter this Khalid Latif is. Can he emulate Khalid Latif and hit a sixer? He's done that absolutely marvelously. Over long on, 6 more runs to Sindh and 6 more to Sohail Khan. What a determined young man Sohail Khan is looking there. In fact, he's telling Khalid Latif how to hit the ball. Beautiful shot. I mean, that is the over they wanted. 4 sixes and a single, and now it's 3 or 5 for 6. So you are very near. So far, it's been a good over from Ziaul Haq. He bowled pretty tight. Slower delivery, slower bouncer, and the catch was taken in the deep. What a good ball by Ziaul Haq. This young Ziaul Haq kept his nerves, kept his cool, and bowled that slow bouncer. And Sohail Khan wanted to play it over mid-wicket, mistimed it, and ball went straight to Zohaib Khan, who did not make any mistake this time. Zohaib Khan caught that ball as if his life depended on it. And I think it would have. Had he dropped that catch, I think the other 10 would have killed him. Well played, Sohail Khan. Caught Zohaib Khan in the deep, in the countryside, bowled Ziaul Haq, and Ziaul Haq's experience, his talent, his intelligence, and of course the encouragement from Ahmed Shahzad paying off. Now the interesting thing would be that have they crossed over? This is another interesting point, because Sohail Khan, while hitting the ball, stood there, whereas Khalid Latif wanted him to run. He missed it this time. He wanted to play. They are tired looking, Khalid Latif, I think, and kept this match alive till the last moment. Is going to come into the picture because there is an appeal for a run out. I think they have a strong case. Yes, I think that's a run out. Yes, this wouldn't matter now, because obviously Sindh umpire has given him out because he was out of the crease. So the game is lost by Sindh, but what a fight they have put on. Rumman Rais walks back to the pavilion without having faced a ball. Hassan Khan. Net run rate position. And Ziaul Haq is too talented to allow that. This one's going down towards deep extra cover. Let it go. 4 runs, but that doesn't matter. Congratulations to the Khyber Pakhtunkhwa team. Ahmed Shahzad and his men, they've done a wonderful job here. And this young man, Khalid Latif, has done a tremendous job as well. Cool and Cool presents Higher Pakistan Cup 2016. There's the squad. Khurram Manzoor failing today. Sami Aslam also unfortunately run out for 7. Khalid Latif, absolutely brilliant. 168 of 129 deliveries for 8 wickets. The bowling, Ziaul Haq, the pick of the bowlers. 3 for 50. 2 for 37 for young Samin Khan. For Yasir Shah for 67 runs. So this is how it ended. 319 for 6. While batting first, KPK scored an Indian reply. 312 for 8. Sindh. So what a tremendous inning by Khalid Latif. It was a great game of cricket which we have seen here. हायर मैन ऑफ द मैच अवार्ड शेयर करेंगे खालिद लतीफ और अहमद शहजाद के साथ. हायर मैन ऑफ द मैच अवार्ड 25,000 they will receive from Hamid Afridi. 25,000 higher man of the match cash award for both the players.